نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مسلمان دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی نے تعارف کروا دیا، تھوڑا سا تعارف میں آپ کو اپنا کروا دیتا ہوں۔ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ چناب نگر میں یہ محلہ فیکٹری ایریا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ تقریباً میں نے اپنی زندگی کے 35 سال گزارے ہیں۔ میری پیدائش یہاں کی، میں نے یہیں سے اپنی تعلیم حاصل کی، اور میرے والدین میرے عزیز و اقارب ابھی بھی محلہ فیکٹری ایریا میں رہائش پذیر ہیں۔ چونکہ قادیانیت وراثت میں ملی، دادا پردادا سارے قادیانی تھے، میں بھی قادیانی۔ تو قادیانیوں کے آپ کو بھی پتہ ہے دو عقیدے ہیں جو مسلمانوں سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا؟ ہمیں یہ عقیدہ، یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ قرآن پاک نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا جب میں نے قادیانیت میں رہتے ہوئے قادیانی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی خود 52 سال تک اس عقیدے پر قائم رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، مگر جب اس نے اپنا عقیدہ بدلا، جب اس نے یہ سوچا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کر دوں اور خود ان کی کرسی پر آ کر بیٹھ جاؤں، تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اللہ نے ان کی جگہ پر مجھے بھیجا ہے۔ اچھا یہ بات کہی، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ مشرکانہ عقیدہ رکھے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں مرزائیوں سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب خود وہ 52 سال اس عقیدے پر قائم رہا تو خود مشرک نہ بنا وہ کہ نہیں بنا؟ تو 52 سال ایک بندہ شرک کرتا رہے اور 52 سال کے بعد اللہ اس مشرک کو اٹھائے اور کہے بھی تو امام مہدی ہے، تو مسیح موعود ہے اور تو اللہ کا نبی ہے۔ پھر اس نے یہ نہیں لکھا، اس نے آگے لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ خیال کرنا ایک انتہائی ذلیل خیال ہے۔ اب میں عام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یہ خیال ہمیں کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ قرآن و حدیث نے دیا؟ تو کیا قرآن و حدیث کا خیال نعوذ باللہ ذلیل خیال ہے؟ یہ ہم ویسے ہی نہیں کانفرنسیں کرتے کہ ہمیں شوق ہے، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں، آپ کو پتہ چلے قادیانیت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ چلیں بات ذرا دوسری طرف چلے گی۔ اچھا میں یہاں رہتا رہا، یہاں میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، یہاں پر میں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو قادیانی بنایا جائے۔ ہر قادیانی یہی کوشش کرتا ہے نا، اس کی دوستی کا، اس کے تعلقات کا ایک ہی مفاد ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو قادیانی کیا جائے۔ تو ایک مسلمان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کوشش کی اس کو قادیانی کرنے کی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑی اچھی طرح نماز پڑھتے ہو، مگر میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے آتے ہو جماعت ہونے کے بعد آتے ہو، کبھی آپ کو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں تو ہوں قادیانی، تو مجھے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تو مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو تیری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، تو اس لیے میں اس مسلمان امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اس بات سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں قادیانی تھا تو میں قادیانیت میں بڑا کٹر تھا،
نماز جیسا جو فعل صرف اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں اس میں بھی میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، چونکہ قادیانیت کی پٹی میری آنکھوں پہ چڑھی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اصل اسلام ہی قادیانیت ہے۔ اچھا، اس ساتھی سے جب میری گفتگو ہوئی تو اس کو قادیانیت کے بارے میں علم کوئی نہیں تھا، اس نے مجھے صحیح بخاری لا کر دی پڑھنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کیا چیز ہے؟ جانتے ہیں نا؟ جی ہاں۔ اچھا، اب جب صحیح بخاری کو، حدیث مبارکہ کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں ایک حدیث پر آ کر رک گیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی یہاں پہ کوئی کہے نا کہ بھی فلاں جگہ پہ کوئی بندہ 10 روپے دے رہا ہے تو لائن لگ جاتی ہے، لوگ بھاگے جاتے ہیں، بچے بھاگے جاتے ہیں کیونکہ 10 روپے ملتے ہیں۔ اللہ کے بندوں جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ ہمارے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، ہمارے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ تو جب بھی سنو، اذان میں سنو، کسی کے منہ سے سنو، بے شک وہ آپ کو نہیں سنا رہا، اگر آپ کے کان میں پڑ گیا محمد رسول اللہ تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ جس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی میں پریشان ہو گیا۔ آپ کا تو ایمان مضبوط ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے۔ اچھا، اگر قسم نہ کھاتے ویسے کہتے تو پھر نہ آتے، پھر بھی آتے۔ قسم کھانے کا مقصد تھا، وہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں کیوں کھائی گی۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ میں نے کہا یا اللہ جی ماجرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جس کو اس وقت قادیانی تھا، اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا، تو میرے لیے اسی طرح اس کا حکم تھا جس طرح آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا ماجرا آ گیا، یہ کیسی سٹیج آ گئی کہ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے۔ چونکہ میں نبی مانتا تھا، مجھے مرزے کی قسم پہ اعتبار تھا۔ جب میں نے امام الانبیاء کی قسم پڑھی کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ لمحہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فکر کا ڈال دیا کہ میں کس طرف جاؤں، یہ بھی نبی اور یہ بھی نبی۔ تو اللہ نے مجھ پہ آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی کہ جس کو تو نے نبی بنایا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کی قسم بھی جھوٹی ہے، جس کو میں نے امام الانبیاء بنایا ہے اس کی قسم بھی سچی ہے، وہ نبی بھی سچا۔ تو اس حدیث مبارکہ پہ اللہ پاک نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد میری اکابرین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اب ایسا کریں کہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو میں نے لاہور 26 فروری 2013 کو یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال میں آزاد کشمیر گیا، گوئی کا علاقہ ہے، وہاں پہ میری قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، وہاں پر 300 قادیانیوں نے قبول اسلام کیا، اور آج بھی آپ کے ہاں حاضری لگا کر میں نے سیدھا آزاد کشمیر جانا ہے۔ ان ساتھیوں نے پھر بلایا کہ وہاں قادیانیوں سے گفتگو کرنی ہے تو آپ آ جائیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اس کانفرنس کی برکت سے اللہ پاک ان قادیانیوں کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب میں نے قادیانی کو جب تبلیغ کرنی تھی تو سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو فون کیا
वालदा साहबा कहाँ रहती है? तो भुल गए हो यार, तो पंजाबी समझ आती जे कि कोई नहीं? तो केड़ा महला दसिया? फैक्ट्री एरिया। तो मैं उस वक्त कितने सी लाहौर, मैं फ़ोन मिलाया, वालदा ने फ़ोन चुकया, मैं हाल चाल पूछया, पंजाबी बोला कि उर्दू बोला? पंजाबी बोल छड़िए। वालदा ने फ़ोन चुकया, मैं क्या वालदा साहबा की हाल है? कहते ठीक ठाक। मैं क्या एक सवाल पूछना है, तो इजाज़त होवे तो सवाल करा। तो मैनू कहते पुत्र ए केड़ा मज़हब अपना लिया तू, ए केड़ा दीन है कि तू माँ को गल करने की इजाज़त मंगना है? मैं क्या अच्छा यदा भी गल बाद च करने, पहले दसो जो सवाल है वो पूछना है, क्योंकि सवाल ज़रा अज विंगा है। इजाज़त तां मंगी है कि एक पुत्र अपनी माँ को सवाल आला नहीं कर सकता। उन्हें कहा पुत्र तू पूछ की गल है? मैं क्या अम्मा जी यह दसो कि मैं तुहाडा पुत्र हलाली वा के हरामी हाँ? अम्मा परेशान हो गई। ए माँ को पूछी थी गल भला, मगर चूंकि मामला दीन का सी ना, फिर पूछनी सी। मैं क्या तुम दसो मैं हलाली हाँ कि हरामी हाँ? कहते पुत्र तू हलाली है, अल्लाह के फजल नाल तेनों किने कहा? इन्होंने पूछा ना किने कहा, ये तो मुराद है कि हजे भी मेरा सारे बचपन के दोस्त इत्थे ने, वो लंगोटिए यार इत्थे ने, वो फोन करते हैं तो कहते ने वो मुरतदा, वो काफरा, वो सरकारी मुसलमाना। तो उन्होंने ज़हन ऐसी किसी ने बुरा भला आख्या होगा, किसी ने कहा तो होना हराम दिया। तो पर मैं क्या यह भी तुहानूं बाद दसना, पहले दसो कि मैं हलाली हाँ? उन्हें कहा अलहमदुलिल्लाह पुत्र तू हलाली हाँ। मैं क्या मैं लाहौर बैठा, तुसीं चनाब नगर बैठे, तुहाडे मेरे दरम्यान अल्लाह पाक गवाह है कि तुसीं मैनूं की आख्या? हलाली। मैं क्या मेरे को एक किताब है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की, इनू मैं खोल के पढ़ता पिया। ये मिर्जे ने लिखा है कि जेड़ा भी बंदा मैनू नहीं मानता वो हरामदा है। तुसीं मानते हो मिर्जे नूं? नहीं ना मानते? यदा मतलब है मरज़ाइया की नज़र च असीं की है हराम दे। तो मैं क्या मैं बड़ा परेशान होया कि मिर्जे तो हुण मैं भी नहीं मानता, इनका मतलब की होया? मैं भी हरामी। तो मैं क्या फिर माँ को पूछ लेने। तो मैं क्या अम्मा जी तुसीं मैनू भला की आख्या? कहते पुत्र हलाली। तो मैं क्या झूठ कौन बोलता पे? अम्मा ने कहा ला भी पुत्र ने चक्कर देता मैंने, चक्कर दे के पुत्र ने फसा लिया। मैं क्या दसो जे मैं हलाली है तो झूठ कौन बोलता है? बेचारे चुप हो गए। मैं क्या मैनू जवाब मिल गया। हुण वो किवें मिर्जे नूं कहे झूठ बोलता, वो तो मिर्जे नूं अपना नबी मानदी, ते नबी झूठ बोलता नहीं बोलता। बहरहाल एक मेरा रंग सी उन्हां तक गल पहुँचाण ते। हुण उन्होंने अगों की जवाब दिता? मैनू कहते अच्छा पुत्र मैनू तेरी गल भी समझ लग गई है, मैनू वैसे गल का तू भी जवाब दे। मैं क्या तुसीं हुण पुछो। कहते ये किताब जी तू पढ़ना पिया है कि मिर्जे ने लिखी कि किसी मौलवी ने लिखी है? यानी कि साडे बजुर्गों के ज़हन च भी कादियानियां ने यह भरिया कि मौलवी जिहड़े ने चंगे बंदे नहीं, वरना मेरी माँ यह सवाल ना करती। बाहर कैफ 26 फरवरी 2013 के बाद जी वड्डी ईद आई वो मेरी इस्लाम में पहली वड्डी ईद सी। नारे तकबीर, आज लो जी मैं बच्चों को कहा, मैं क्या भी गल है कि इस्लाम में साड़ी पहली ईद है तो साढ़े हल तो हुण किसी ने आना कोई नहीं, क्योंकि खानदान सरदार ते छुट गए। तो असी शामी ना अज पार के जाके ईद मनाने हैं। बच्चों क्या ठीक है। शामी 4 बजे मेरे बहनोई का टेलीफोन आ गया, मैं फ़ोन चुकया हैलो किया, उन्हें कहा सरकारी मुसलमान। मैं क्या जी भाईजान, कहते यार अज साढ़े घर आ जा। मैं तो सोचता सी कि मैनू पुछना नहीं, हैरान भी होया। मैं क्या भाईजान खैर है? कहते यार वो घर कुछ ना रिश्तेदार आए बैठे ने, तो कहते ने शमसुद्दीन नूं बुलाओ, अज असीं इहदा मौलवी पुणा उतारना है।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਲਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ललकार है, ललकार है। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੂੰਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੱਜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਭਲੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਬੰਨਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੰਨਣਾ ਹੈ? यानी मिर्जे तो मुराद है कि मिर्जे दी किताबां उन्हें बैग च पाइया, गड्डी डिग्गी च बंद किया तो मैं जनाब सला मारिया तो मैं उन्होंने घर अगे गया। 5-7 कान टुटे बैठे हुए पेंटा शंटा पा के मैं जाके बह गया। मेरे बहनोई ने गल शुरू कर दी, कली कली मेरी भैन है, वो सारे आके वे परां बैठ गए, मैं भी कला बह गया। उन्होंने मेरे बहनोई ने गल की, उन्हें कहा जी अज तिकर इस्लाम मिर्जे जैसा नेक बंदा पैदा ही नहीं होया। मैं दिल च कहा, मैं क्या अल्लाह हुण करी भी ना, इहो जिहा नेक होना करी भी ना। मैं ना पूछा, मैं क्या जी किड्डा क नेक सी? कहंदे मिर्जा एडा नेक सी कि अज तिकर किसी नूं नहीं पता चलिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी कबर कित्थे है। 2000 साल हो गए इस मामले में, किसी को नहीं पता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर कित्थे है। अल्लाह ताला ने मिर्जे ते वही की ते वही करके दसिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर कश्मीर है। मैं कहा तुसीं गल अपनी जारी रखो, जो खत्म हो जाएगी फिर मेरी वारी। तो मैं इन्ना सिर्फ पूछा, मैं क्या वही लैके कौन आया? वही भी कोई लिया कि नहीं लिया जी? लिया है ना फरिश्ता वही। मैनू कहते तेन नहीं पता वही कौन लैके आंदा? मैं क्या मैनू पता है उस वही का जी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आंदी सी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लैके आंदे सन। तुसीं चूंकि बात की मिर्जे की तो मैनू पुछना पै गया। कहते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लैके आए। मैं क्या इस गल ते पक्के रहा जी? उन्होंने की पता कि की बीतनी है? कहते असीं पक्के हाँ। बहरहाल उन्होंने गल खत्म की। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या जी कोई होर गल करनी कर लो, फिर मेरी वारी है, तुसीं नहीं बोलना। सारे बड़े खुश, एक दूजे का मूँह वेखण। मेरी वारी आई, मैं बच्चों को इशारा किया, मैं क्या वो भजे गए, उन्हें डिग्गी चो मिर्जा कढ़िया लिया के उत्थे रख छड़िया। वो मैं कढ़ के मैं टेबल ते लाया मिर्जा का। मतलब पोस्टमार्टम करना तो टेबल ते बिछाना पैंदा कि नहीं पैंदा? पैंदा। मैं वो किताब कढ़ी जिहदे च मिर्जे ने लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर कित्थे। तुहानूं भी मैं क्या चेता रहे ना कि मिर्ज़ई की कहंदे ने। मैं किताब कढ़ के उन्हां दे अगे रख छड्डी। मैं क्या जी ए मिर्जे ने लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर कश्मीर है। उन्हें क्या असीं भी तो यही कहने हैं। मैं क्या इस कबर ते वही कौन लैके आया? बकौल कादियानिया दे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मैं क्या पक्का यकीन है? मैं की पूछा, पक्का यकीन? अगों वो बोले साडा ईमान है क्या कबर सच्ची है कश्मीर वाली। मैं कहा चलो तुहाडे ईमान नूं चेक कर लैंदे, सानूं किहड़ा मसला है। तुसीं जिहड़ी गल करनी है मैं उत्थों शुरू कर देनी है। लो जी, मैं वो कबर वाली किताब कढ़ के तो यूं रखती टेबल ते खोल के। मैं क्या जी यही कबर है ना? उन्होंने कहा इहो कबर है, ए पई जे कश्मीर वाली कबर। मैं किताब विचों एक होर किताब कढ़ ली, किताब कढ़ी, मैं खोली, खोल के मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भाईजान ये मिर्जा लिखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर फलस्तीन किथे ते जे कबर फलस्तीन लभी है तो यकीनन यह भी मिर्जे नूं वही हुई होएगी। तो वही हुई तो कोई फरिश्ता ही वही लैके आया होएगा ना। ऐ तो नहीं हो सकता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक गल की वही उत्थे लिया तो दूजी गल की तो गलत उत्थे लैन। हो सकता जी? नहीं हो सकता। तो मैं क्या ए वही कौन लैके आया? उन्होंने की पता हो बेचारिਆਂ ਨੂੰ। मरज़इया ने कभी मरज़इयत पढ़ी हुई तो पता हो ना उन्होंने। मैं क्या मैं दसना
मैं क्या इस कबर ते वही लैके आने वाला फरिश्ता सी टिची टिची हैगा सी फरिश्ता टिची टिची के नहीं है थी ना। हालांकि मिर्जे ने किताब में लिखा कि वो सिर्फ मेरे को पैसे लैके आंदा सी फरिश्ता। मिर्जा कहता है कि मेरे को सिर्फ पैसे लैके आंदा सी। बहरहाल मैं क्या जी इस किताब से इस कबर की वही लैके आया टिची टिची मैं भी खोल के कबर सामने रखती। मैं क्या तुहानू मैं पूछना तुहाडा किस कबर ते ईमान है, कश्मीर वाली के फलस्तीन वाली ते। मैं तीजी किताब कढ़ ली, तीजी किताब कढ़ी, मैं उस सफ़ा खोलिया कढ़ के तो मैं क्या ये मिर्जा लिखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर बिलादे शाम में वाक़या है। और नाल कहता कि हज़रत मरीम की भी कबर नाल ही है, एक बहुत बड़ा गिरजा बनया उत्ते और दो बंदियां की गवाही पेश कर छड़ी नाल। मजबूत होगी ना सब तो ज़्यादा नेड़े कबर यही हुई तो दो गवाह भी मिल गए। मैं क्या भाईजान पता इतने वही कौन लैके आया। हुण सारे चुप, तो जेडे पेंटा पुंटा पा के आए ना मम्मी डैडी लोहरीए सारे चुप। मैं क्या मैं दसना, मैं क्या तुहानू पता है कि कादियान किहड़ी जगह ते है? तुहानू पता कादियान कित्थे? इंडिया हिंदुस्तान है ना। तो हिंदुस्तान कौन रहिंदे ने? हिंदू। तो यह मिर्जे का फरिश्ता भी हिंदू सी क्योंकि यदा नाम सी मिठन लाल। तो मिठन लाल मुसलमानों का नाम है कि हिंदुआ का है। तो मैं क्या इन्हें तो वही लैके आया मिठन लाल। मैं क्या हुण कबर हो गई किनियां? 3। वो मैं इवें करके किताब चौथी कढ़न लगा तो कहते की कर लगा? वो मेरा बनोई पुछदा की कर लगा? मैं क्या चौथी कबर कढ़ूँ। मैं क्या चौथी कबर कढ़ूँ? कहते बंद कर देना किताबों, बंद कर इत्थे। नारे तकबीर, कज्जाल तिलावत, कज्जाब तिलावत, झूठे तिलावत, नारे तकबीर, काज़िम मुस्तफ़ा नबूवत, कज्जाब तिलावत, कज्जाब तिलावत, कज्जाब तिलावत, नारे तकबीर, काज़िम मुस्तफ़ा नबूवत, भाई शमसुद्दीन साहब। अच्छा जी, मैं उन्होंने कहा मैं क्या चौथी कबर कढ़न लगा, मैनू कहते यार किताबा बंद कर दे। बड़े गुस्से नाल आख्या मैनू उन्होंने। जो गुस्से नाल आख्या तो मैं उन्होंने पूछा मैं क्या तुसीं मिर्ज़ा साहब नूं मनदे की जे? कहते अल्लाह का नबी। तो मैं क्या अल्लाह का नबी जी गल फरमा दी वो तो हदीस हुंदी ते हदीस की एडी बेर होंदी ना कहते कि बंद कर इनू। अच्छा चल यार बंद कर दे, तू तो पिछे ही पै गया साडे। मैं क्या थोड़ा जिहा टाइम दे दिओ, चौथी कबर के नाल पंजवीं कबर भी जे पई विच किताबां दे। ते जे इवें तुहानूं 5 कबरां ना साबित करां तो फिर गल करिया जे। हुण उन्होंने सोचा लै बई, फिर आ के मैनूं कहण लगे कहंदे यार दस मेरा घर है कि कब्रस्तान है? मैं क्या जी कबर की गल मैं छेड़ी, तुसीं गल कबर की कीती तो मैं क्या तुहानूं मैं कबरां विखा ही दियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी किते किते मिर्जे ने बनाईयां ने। फिर मैं पूछा मैं क्या तुसीं आख्या सी कि साडा ईमान है, तो मैं क्या हुण 5 कबरां मिर्जा दस है तो तुहाडा किस कबर ते ईमान है दस तो दिओ। हुण जदों उन्होंने क्या किताबां बंद कर ते मैं अपनी किताबां की तरतीब सैट करन लग पिया। जो मैं किताबां की तरतीब सैट की तो एक उठिया, उन्हें बड़े औखे होकर ना पिछों मोबाइल कढ़िया जेब चो। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, मैं बाहर आके गल सुनना ज़रा। चलो बाहर चला गया। होर 2 मिनट लंघे ने, एक उठिया कहता भाईजान मैनूं उदों पता लग गया। मैं क्या इन्हें निक्की उंगली खड़ी की होने कोई वड्डी भी खड़ी करेगा। यकीन करो थोड़ी देर बाद उन्हें वड्डी खड़ी करती दूजे ने, वो भी बाहर। मैं अपनी दुकानदारी सीधी करके बैठा तो मैं वेख्या वो जो 5-4 मम्मी डैडी सन सारे गए। मैं फिर इन्होंने पूछा मैं क्या किधर गए? वो इत्थे ही ने आए, इन्होंने फोन सुनन गए ने। मैं कह लो मैं तुहानूं दस दिना जिन्नी देर तक मैं बैठा ना तुहाडे घर इन्हां चों एक भी वापस नहीं जी आना। और अल्लाह की करनी ऐसी ही हुई, मैं रात 2:30 बजे तक बैठा रहा, उन्होंने कोई वापस मुड़ के ही नहीं आया। अच्छा जी, बहरहाल मैं अपना काम जारी रखिया, किताबां खोल खोल के जेड़ी वो गल करन मैं
मिर्जे की किताबें चो कढ़ के उन्हें अगे रख छड्डां। रात के जिले 2 बज गए ना, तो मैं उन्होंने कहा, मैं देखो गल है कि 4 बजे का मैं तुहाडे घर बैठा आके, तो रात के 2 बज गए ने, तुहानूं मैं इन्ने मिर्जे के कुफर कढ़ के सुनाए ने, तो तुसीं हर गल नूं कह दिंदे हो कि रूहानी गल्लां ने, रूहानी गल्लां ने। तो मैं क्या, मैनूं गल दस दिओ कि तुहानूं मिर्जे नाल बहुता प्यार है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बहुता प्यार है। तो तुसीं यकीन करो, मैं पहले भी कहा, मेरी कल्ली कल्ली भैन वो बड़े धड़ल्ले नाल बोली, कहंदी मैनूं ते मिर्जे नाल बहुता प्यार है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या क्यों वो पीछे लगी, आप जहन्नम चला गया है, तो इन्ने लोगों को गुमराह उन्हें किया है, तो छड़ दे उसका खैड़ा। तो मैनू ने पता की जवाब दिता, मैनू कह लगी, अगर अल्लाह मियाँ भी आके मेरे काने च गल कहे ना कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है, तो मैं अल्लाह की गल भी नहीं मानती। मैं किताबां कतूबां बंद कीतियां, बच्चे बुच्चे सो गए सन, खुद ही खबीस में चुक के मैं डिग्गी दोबारा बंद किया, सलाम मारिया, मैं घर आ गया। मगर ज़हन बड़ा परेशान, दिल सी कि कोई एक भैन है, अल्लाह इस्लाम की दौलत दे दे, तो मगर मैं तसव्वुरात उसके नज़रिए सुन के हैरान हो गया। अच्छा, जो मेरा बड़ा भांजा सी ना, वो इस टाइम की उम्र होगी कोई 27-28 साल, शदीद मेरे मुखालफ सी, सब तो ज़्यादा बुरा भला, और मैनू गालां उही कढ़दा सी। मगर चूँकि जो मरज़ई अपनी मरज़ई इंतहा ते पहुँचता है, अल्लाह नूं ललकारदा है, फिर अल्लाह भी उन्होंने वहांदा कि बई नज़ारा लै हुण। लो जी, मैं अल्लाह को दुआ की, अजे इस गल नूं महीना नहीं लंघिया, तो मैं अपने वड्डे भांजे नूं टैलीफोन किया एक दिन, और तुसीं यकीन करो कल्ले बैठ के अल्लाह नाल मैं गल की। मैं कहा, या अल्लाह, मैं उन्होंने फोन करांगा, मैनूं गाल कड्डेगा, मगर वो मैनूं गाल कढ़ लवे, मैं अपनी तबलीग ते करनी कि नहीं करनी, गालां सुन के भी करनी है। तो मैं कहा, या अल्लाह, मैं फोन कर लगा, वो मामला संभाल लें। मैं फोन किया उन्होंने, मैं क्या बई अहमद अज तू मेरे घर आ। उन्हें कहा, मामू खैरियत है। जो उन्हें बड़े प्यार ने कहा ना, मामू खैरियत है, तो मैनू समझ लग गई कि अल्लाह ने अपना काम कर दिता। उन्हें कहा, मैं राती 9 बजे आवाँगा, राती 9 बजे मेरे घर आ गया। मैं अपनी अलमारी खोली, सारे मिर्जे की किताबां रख के, तो 12:30 बजे तक 3.5 घंटे ला के उन्होंने मैं मिर्जे के कुफर विखाए। वो बच्चा कल कहते मजबूर हो गया कि मामू इन्हां किताबां इंतहा तो ज़्यादा कुफर लिखिया, इंतहाई गंदियां गल्लां लिखियां ने। मगर उन्हें 12:30 बजे गल लै कर छड़ी, कहंदा मगर मामू मैनू लगता है किताबां मिर्ज़ा साहब दी नहीं हो सकदियां, यह किताबां 2 नंबर ने और किसी मौलवी ने लिखियां ने, क्योंकि एडियां गंदियां गल्लां मिर्ज़ा साहब नहीं करते। मैं क्या, कोई गल नहीं पुत्र। मैं उठिया, दोबारा अलमारी खोली, उतों कुरान पाक कढ़िया, तो मैं क्या, इस किताब को जानना है? कहता जी अल्लाह का कलाम है। तो मैं क्या, सच्चा है ना? कहता सच्चा है। मैं क्या, मैं सिर पर रख के कहना क्या किताबां मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दियां ने? उन्हें कहा, मामू यह गल फिर भी तेरी मैं नहीं मानता। तुहानूं मैं अर्ज की कि मिर्ज़ई कुरान हदीस की गल तो एवं ही छड़ देंदे ने बाहर गया। हुण मेरे को सब तो वड्डा सबूत उन्होंने मनाने का यही सी। यकीन करो उस वक्त अल्लाह ने ज़हन च गल पाई, जो उन्हें कुरान का फैसला ना मन्निया, मैं क्या यार एक होर फैसला कर लीए चल, क्योंकि कुरान का फैसला तो मनता है मुसलमान, तो मरज़ई की है मुसलमान तो नहीं ना, तो मरज़ई तो नहीं मनना, फिर दुख किस गल का, क्योंकि मुसलमान है ही नहीं। बाहर गया, मैं क्या एक होर फैसला है? कहता की? मैं क्या तेनों पक्का पता है किताबां मौलवी ने लिखियां ने? कहता बिल्कुल मैनू पक्का यकीन है कि किताबां मौलवी ने लिखियां ने। मैं कहता मतलब है तेरी नज़र च मौलवी सब तो गंदा इंसान है जिन्हें किताबां लिखियां, तो मेरी नज़र च किताबां मिर्जे ने लिखिया, मिर्जा सब तो गंदा है। इवें करने फैसला हुणे हो जाएगा, तू भी ये लिखे वाले तो लानत भेज दे, तो मैं भी भेज देना, ढोला ही मुका विचों। हुण जिल्ले मैं गल की ना, तो सोफे तो बैठा तो इदा हो गया एक बारी, कहता मामू वेखी मरवा ना दई मैनू। मैं क्या पुत्र क्या जिन्हें भी लिखिया इन्हें लानत, क्योंकि किताबां लिखिया ने मौलवी ने, तो लानत पेगी। मौलवी तो तेन तो किस गल दुख है,
पर वो समझ गया बात नूं कि हुण लानत पैणी किहदे ते है। कहना मामू मैं घर चलिया। मैं कहा पुत्र जा। मैं कहा असीं तैनूं सिर्फ विखाना सी काम, साडा काम की डाकी दा की काम है, डाक दे देनी। अगों ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ है, वो की सोचदा है, घर दा पढ़ के डाक नूं ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ कित्थे जांदा, वो ਉਹਦੀ मर्जी, डाकिया डाक दे के चला जांदा है। असीं अपना काम कर दिता, वो घर चला गया। सारी रात वो बच्चा सुता ना, सवेरे उठे अपनी बीवी नूं कहंदा चल चली। उन्हें कहा कित्थे? उन्हें कहा एक मुरब्बी दे घर जाना है। तुसीं तो मुरब्बी समझदे हो ना सारे। वो मुरब्बी दे घर चला गया। उत्थों जाके उन्हें मुरब्बी दे घरों 2 किताबां लईआं रूहानी खजाइन दियां लैके ते मैनूं फोन किया, कहना मामू कित्थे हो? मैं क्या घर आ। कहना घर रहना, मैं तुहाडे घर आ रहा। मैं क्या आ जा। लो जी घर आया, बैठा है, किताबां कढ़ के मैनूं कहंदा मामू इहदे नाल दीयां 2 किताबां अपनी अलमारी च कढ़ के मैनूं दिओ। वो मिर्जे की किताबां दी जिल्द नंबर 21 ते 22 सी। मैं अपनियां कढ़ियां, एक सोफे ते वो बैठा, एक सोफे ते उसदी बीवी बैठी। कहंदा मेरी बीवी नूं किताबां फड़ा दिओ। मैं उसदी बीवी नूं फड़ातीआं। बीवी नूं कहण लगा, क्योंकि बीवी जरा ज़्यादा पढ़ी लिखी सी, बीवी नूं कहण लगा ये यूं किताब खोलदा सी, सफ़ा नंबर निकलिया 284। तो बीवी नूं कहंदा सी मामू की किताब तो 284 सफ़ा खोल के पढ़ना शुरू कर। बीवी पढ़दी सी, वो वेखदा जांदा सी सारा, यूं यूं करदा रहा बेचारा, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। मैं कहा लगे रहो। पौने घंटे बाद उन्हें किताबां रखतियाँ। मैं क्या की रिजल्ट निकलिया? कहता मामू किताबां एक नुकते का भी फर्क कोई नहीं। तो मैं क्या पुत्र मैं तेनों राती गल आखी सी, मैनू की लोड़ है बिरजे की खातर मैं झूठा कुरान चुकदा, तू तो राती मेरी बात समझिया ही नहीं। कहना मामू असल वजह यह सी कि मैनू मेरी अम्मी ने यह गल आखी सी कि जिहड़ियां मामू कोल किताबां ने 2 नंबर ने। मतलब देखो कादियानी अपने बच्चों को सच्चियां किताबां भी मिर्जे दियां 2 नंबर बनाता उसकी माँ ने। मैं क्या पुत्र फिर हुण? कहना मामू तुसीं राती कहंदे सी लानत भेजदे, मैं डरदा सी किते मिर्जा साहब ते सच्ची मुच्ची लानत भेजदा ते मिर्जा सच्चा होया। फिर तो हुण मैनूं यकीन आ गया। तो मैं क्या पुत्र जिहड़े राती तू कहंदा सी इन्ना कुफर लिखिया गल्लां लिखियां वो किधर गईयां? कहंदा सबर तो करो मैं तुहानूं दसना। मैं क्या की? कहंदा हुण मैनूं यकीन आ गया कि यह किताबां जिहड़ियां तुहाडे कोल पईयां ने सारियां मिर्जे दियां ने, ते राती मैं लानत नहीं भेजी, हुण मैं इहदे ते लानत भेजना। नारे तकबीर, पंजाब सलामत, पंजाब सलामत, पंजाब सलामत, आगे सलामत, झूठे सलामत, नारे तकबीर। अच्छा जी, उन्हें की कीता? उन्हें कहा जी मैं मिर्जे ते लानत भेजी, मामू मैनू कलमा पढ़ाओ। उन्हें कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। मैं उधरों नज़र छुड़ा के मैं नज़र इधर कर ली। वो मैं क्या कुड़िए तेरा की इरादा है? एवं बाद जो असी रोलियां च पवांगे फिर तेरा फिर दोबारा कोई निकाह दसना सोचांगे, तो हुणे गल कर तेरा की इरादा है? उन्हें कहा मामू मैं भी कुफर वेख ले, मैनू भी कलमा पढ़ा दिओ। दोवें मियाँ बीवी मुसलमान। ए बच्चे भला कौन ने? ए मेरी उसी इकलौती भैन दे पुत्र जिहड़ी कहंदी सी कि अल्लाह भी मेरे काने च कवे ते मैं नहीं मानदी। ते अल्लाह ने कैसा सबक सिखाता? वो उतले पोषण च रहिंदा अपने, सुबह उठदा है अजान हुंदी है, जाके मुसलमानों की मसीते नमाज पढ़दा है, वापसी सीढ़ियाँ चढ़दा तो कहंदा मिर्जे पे लानत बेशुमार। और मां सुनदी हुण। मैं कह लै तू कह अल्लाह नाल लै पंगा, तेनों अल्लाह दसदा हुण। तुसीं मरदईए ने समझिया की होया? इहदे बाद मैं छोटे भांजे नूं फोन किया, मैनूं कहंदा मामू मैं तुहाडीआं गल्लां च नहीं आंदा। तो मैं क्या ना मैं तेरी पैरी पे है, मैं तो इस्लाम की दावत देन आया, मनना ही मन लै, नहीं मनना तो मैं कहो बैठा मना लेगा आपे, तुहानूं क्यों परेशान होंदे हो? कहंदा नहीं मेरा मतलब है नहीं है। वो अहमद भाई सी जिहड़ा तुहाडी गल्लां च आ गया, तो मैं जावांगा चनाब नगर रबवे, उत्थे जिहड़ी साडी लाइब्रेरी अंदर इन्हां दी, उत्थे मैं बैठांगा, उत्थों मैं किताबां खोलांगा, तो फिर तुसीं मैनूं फोन करिया जे तो किताबां टैली करांगे, एक दूजे नाल मैच करांगे। मैं कहा पुत्र ठीक हो। इत्थे आया चनाब नगर, लाइब्रेरी वड़ गया, मैं उन्होंने फोन कॉल की,
उन्हें कम अज़ कम 50-60 साल पुरानी किताबां मिर्जे की कढ़ियां लाइब्रेरी चों कि शायद नवियां का कोई रौला होवे तो मैं पुरानियां किताबां कढ़ना, पुरानियां किताबां कढ़ के मैनू कहे मामू फलानी किताब का फलाना सफ़ा खोल के पढ़ना शुरू कर दे। मैं पढ़ता रहा, पौने 2 घंटे मैं उन्होंने कादियानी कुफर विखांदा रहा, सुनांदा रहा। पौने 2 घंटे बाद मैनू कहंदा मामू थक गया मैं क्या पुत्तर गल सुन, किनू मनना है? कहता की मतलब? वो मैं क्या केड़ा मनण वाला तू, जिथे बैठा है किन्ना दी जगह है? कहता अहमदियां दी। तो मैं क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नूं मनना है ना? कहता हाँ जी। तो मैं क्या दसा भला मामा किनू मनदा हुण? तो मैं क्या जिन्नू तू मनना है तो तू थक गया, तो जिन्नू मामा मनदा ना कदी वो थकिया तो ना ही वह उमती थकदा है, ना ही कदी वो थकिया तो ना ही वह उमती थकदा है। तो मैं क्या पुत्र मैनू कहे तो 2 घंटे होर तेनू कुफर सुनाना मैं। उन्हें कहा ना मामू मैं समझ गया, मैं लाहौर आके ऐलान कर देंगा। वो मैं क्या कमला है, टैलीफोन पर गुफ्तगू हो रही। मैं क्या पागल है, लाहौर किन्ने वेख्या? तू चनाब नगर तो चलेगा तेन 4 घंटे लगणगे लाहौर पहुँचते हैं। तो अगर अल्लाह ने तेरी जिंदगी ना लिखी हुई 4 घंटे तो सफ़र चाहेगा तो जिंदगी तो फिर चलेगी कुफर दे विच। मैं क्या इत्थे ही कलमा पढ़। कहंदा मामू वो मरज़इयां दी लाइब्रेरी, वो सारे आले दुआले मरज़ई बैठे ने। मैं क्या पुत्र, मैं क्या कलमा पढ़न का मज़ा ही कुफर दे विच आंदा है। मैं कहा तू कलमा पढ़। बहरहाल चूँकि उसकी उम्र सी कोई 23-24 साल, यंग बच्चा सी, डरदा भी सी। बहरहाल ऐसा ही हथ रख के ना कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहता मामू हुण खुश जे? मैं क्या ना, मैं क्या खाली कलमा पढ़े हैं, मरज़ई भी पढ़ते हैं, असी भी सारी उम्र यही पढ़ते आए हैं। मैं क्या ना लाख मिर्जे पे लानत। कहता मामा तू लगता मैनू मरवान का प्रोग्राम बनाया, वो इत्थे मेरी ना जान नहीं छड्डनी। मैं क्या जो तू लानत भेजनी है ना तो उदों मरज़इयां ने तेरे नेड़े भी नहीं आना। बहरहाल उस बच्चे ने टैलीफोन पर मैनू हल्का जा क्या मरज़इयों पे लानत। मैं क्या हुण कलमा पढ़ के सफ़र कर, हुण अगर तू अल्लाह नू प्यारा भी हो जाएगा तो अलहमदुलिल्लाह मौत किहदे च होएगी? ईमान दी। हुण ए बच्चा कौन है? ए बच्चा कौन है? ए उसे औरत का दूसरा बेटा। 2 ही बेटे अल्लाह ने दोवां नू मुसलमान करता। अज वो की कर दी? वो झोलियां चुक के मेरे लिए बददुआवां कर दी। वो एक दिन भांजे ने फोन किया, कहना मामू अम्मी बड़ियां तुहानू बददुआवां देंदी। मैं क्या की कहंदी? कहंदी या अल्लाह इहदी औलाद सिख हो जे, यहूदी हो जे, ईसाई हो जे, काफर हो जे। वो मैं एक दिन गया, मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या सुनिया बाजी तू मेरे लिए बड़ियां बददुआवां करनी। मैं क्या गल सुन मेरी, इस्लाम का असूल है कि अगर तुहाडी कोई उंगली कटदा तो तुसीं उहदी उंगली कट दे, मगर उहदे मुकाबले तुसीं हत्थ नहीं कट सकते। इवें ही गल है जी कि नहीं, कि गलत गल है? तो मैं क्या तू जो इन्नियां बददुआवां करनी है, जबान नूं मैं क्या इन्नी तकलीफ देनी है, वेख तू दुआ बददुआ करनी मेरे लिए सारी उम्र कर, सजदे च कर, मगर मैं तेनों आसान बददुआ दस देना। कहंदी वो की? मैं क्या वेख तू यह बददुआ करे करके या अल्लाह जो इन्हें मेरे बच्चों को बनाया है ना, तू भी ये बच्चों को यही बना। बस मैं क्या बदला पूरा। तो जे तेरे बच्चे बने सिख तो फिर तू कह सिख बन। हुण वो किवें आके उन्होंने तो पता मेरे बच्चे हुए मुसलमान, वो किवें मेरे लिए कवे मुसलमान दे। बाहर कैफ समझाया समझाया उन्होंने। इंशाअल्लाह हले भी मैं जदों आना चनाब नगर मैं अपने वालदैन को जाना, मगर हुण मेरा चनाब नगर आना उन्होंने मुलाकात नहीं होंदी। हुण मैं जो लाहौरों चलना तो मैं उन्होंने दावत देने लिए आना। अज इंशाअल्लाह तुहाडे प्रोग्राम में आया तो एक मेरा रज़ाई चाचा इंग्लैंड बैठा मिर्ज़ा मसरूर। मैं अगे भी कई प्रोग्राम जिन्होंने कहा मरज़इयां नूं कि तुसी चाचे भतीजे का मनाजरा करा दो अपने MTA दे, छड्डो सारे खैड़े,
आखिर खलीफा वक्त मानते हो ना उन्होंने। खलीफा वक्त जिहड़ा बंदा हुंदा वो एवें थोड़ी हुंदा है। साडे खुलफा राशदीन सन, वेखी जिंदगी सारिਆਂ ने, किसी को डरे जिंदगी इनू कहो मैं उत्थे आना MDA च पूरी दुनिया देखेगी, पूरी कादियानिया देखे, आप दोवें बह के मुनाजरा कर लेने, तू साबित कर दे। इत्थे मैं आया चनाब नगर, एक मुरब्बी ने मेरी गल होन लगी। हाँ तुहानूं एक मज़े की गल दसां, साडे ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब का नाम सुनिया? सुनिया जी? उन्हां दी दो गल्लां तुहानूं दस्सण लगा, उसके बाद फिर मैं अपना बयान खत्म कर देंगा। ताहिर साहब खत्मे नबूवत के बहुत मुजाहिद आदमी ने, सारी जिंदगी रद्दे मरज़ियत गुजर गई उन्होंने। अज भी तुसीं उन्हां दे घर चले जाओ, उन्होंने अपने बाथरूम के उत्ते लिखा होया कादियान हाउस, यानी एडे शदीद हो। कहते हैं जिहड़ा बंदा अल्लाह के नबी का गुस्ताख है ना, उसकी दुश्मनी मेरे नाल है नहीं है, मैं उसका दुश्मन। वो एक दिन बाहर खड़े तो खोती रेड़ी लगा जाए, खोती रेड़ी समझते हो? खोती रेड़ी लगा जाए, उन्हें ताहिर साहब ने वेख्या, उन्हें खोती उत्थे बन्नी तो भज के आ गया ताहिर साहब को। कहता ताहिर साहब तुसीं खत्मे नबूवत दे बहुत बड़े आलम हो, बहुत बड़े आलम हो, मेरा एक मसला हल कर दो। उन्हें क्या की? उन्हें क्या गरीब आदमी आ, सारा दिन मेहनत मजदूरी करना तो 250-300 रुपये दिहाड़ी लभदी है, वो जो अद्धे तो खोता खा जाता है तो अद्धे मैं घर लै जाना, बड़ी तंगी है, कोई नुस्खा दस दो। ताहिर साहब ने कहा कोई गल नहीं, तेन हुणे नुस्खा दस देने, तू खलो। ताहिर साहब गए, उन्होंने को नुस्खा लिया के दिता, उन्हें नुस्खा लिया। ताहिर साहब ने कहा खोते च गले च पा दे, इनू की कर, खोते के गले च बन दे। उन्हें खोते गले बंद चला गया। वो कोई 15-20 दिनों बाद, महीने बाद उन्होंने फिर ताहिर साहब नज़र आए, उन्हें फटाफट खोता खड़ा किया, भजा गया ताहिर साहब को, जांदे सूट मारिया। ताहिर साहब ने कहा खैर? कहता कमाल हो गई हजरत जी, जी अगे मैं दिहाड़ी कमाता 250-300, हूँ मैं कमाना 500-600, हजरत मेरी तो दिहाड़ी डबल हो गई। तो मैं तुहानू बड़ियां दुआवां देना, अल्लाह बड़ियां दुआवां दित्तियां ने। तो उन्हें पूछा ताहिर साहब नूं, ताहिर साहब सारी गल्लां दी समझ आई, ए नुस्खा की सी? उन्हें कहा तू दस की सी? कहते तुसीं फोटो दी एक मैनू। उन्हें कहा फोटो दी, फिर कहना मैं खोते के गले से बन्नती। उन्हें कहा कमाई डबल हुई? उन्हें क्या हुई? उन्हें कहा तू जो खोते जी पहले चलाना था तेरे को किन्ने खोते सी? एक। उन्हें कहा हुण तेरे 2 खोते हो गए, तो जो 2 खोते हुए तो कमाई डबल हुई। उन्हें कहा 2 तो खोते हो गए, फोटो के दी सी? उन्हें कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दी सी। वो बड़ी बड़ी जगह काम आता है जी, यकीन करो। वो एक साढ़े लाहौर के साथी, उन्होंने नवा मकान बनाया, पहले जमाने लोग पैर छोटा पाते सी, हुण तो लोग एडा वड्डा पाते हैं, बच्चा फुटबॉल सुटे बाहर निकल जाता है। वो छोटा पैप पाया, चुपसा चुपसा कीतियां, रगड़ाइयां कीतियां, बड़ा खर्चा किया, गटर बंद हो गया, बड़ा परेशान होया। वो जिद नाल गल करे कि फलाने चूड़े लाहौर के फलाने चूड़े को बुलाओ, बड़ा माहिर गटर खोलन दा, जाल चूड़े को बुलावे, 200-400 के गटर ना खुले। एक इंजीनियर ने बुलाया, उन्हें कहा कम से कम 25-30 हज़ार का खर्चा आएगा। उन्हें कहा यार हुण नवा मकान बनाया, किहड़े स्यापे नूं पै गए। उन्होंने किसी ने तुहाडे मेरे घर ने गल सुनी, उन्हें ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब दसता, उन्हें ताहिर साहब को फोन किया, हाल चाल पूछा, कहते ताहिर साहब बड़ा परेशान होना, की होया? कहना गटर बंद हो गया। उन्हें कहा लै गटर बंद हो गया, फिर कहना जी बड़े चूड़े बुलाए लाहौर से, गटर नहीं खोलता। उन्हें कहा मुंडा भेज मेरे को, वो मुंडा भेजा, ताहिर साहब ने नुस्खा देता उन्होंने कहा जाके गटर रख दे, उन्हें जाके गटर रखता नुस्खा, अद्धा घंटा लिया, गटर फुर करके हो गया। बंदा बड़ा परेशान होया कि यार अजीब माजरा है, बड़े बड़े चूड़े बुलाए, गटर नहीं खुले, तो यह की हो गया? उन्हें ताहिर साहब ने फोन किया, उन्हें कहा ताहिर साहब मैं बड़े बड़े चूड़े मंगाए, बड़े रुपये खर्च किए, तो गटर ना खुलिया, तो तुसीं फोटो दी तो गटर खुल गया। उन्हें कहा पागला तू मंगाए अगे खाली चूड़े, तो मैं अजगी चूड़िया का बादशाह भेजे तेन, जो चूड़िया का सरदार आता तो फिर हर शहर फुर हो जाती है। उन्हें कहा वो तो ठीक है की सी? उन्हें कहा सब तो वड्डा अल्लाह के नबी का गुस्ताख से। उन्हें कहा छोटे मोटे काम तो एवं निकल जाता है, गटर गुटर तो एवं पी जाता है, तू परेशान ना हो। तो मेरा भी दिल किया, मैं कहा चलो मजमा बैठा है अज, कोई प्यार मुहब्बत की गल्लां होईयां, तो मैं भी ताहिर साहब के 2 हवाले सुना ही दियां।
तो बार दुआ करो अल्लाह ताला इन्होंने हदायत आ फरमाए। एक जरूर ज़हन रखो कि कादियानी जिहड़े ने मैनू खुद पता हुंदा सी असीं ये गल करन लगे तो गल गलत है, मगर कादियानिया की पट्टी अख ते चढ़ी सी ते कर छड़ी सी। शाहकोट च एक इमाम मस्जिद का प्यो कादियानी हो गया। 73 साल उस बाबे की उम्र, 73 साल 1 मिनट पिछे उसदी इबादत सारियां अल्लाह ने। कुछ लोगों की मुलाकात हुई, मैनू भी अल्लाह ने तौफीक दी, मैं भी चला गया, मुलाकात हुई, अल्लाह ने उन्होंने वापस इस्लाम में दाखिल कर छड़िया। उन्होंने पूछा, मैं क्या तुसीं मरज़ई होए किवें? कहंदा पुत्तर मैं दुकान तो सौदा लैन जांदा सी तो बाबे का अखलाक बड़ा चंगा सी, मैनू बिठांदा, पानी पिआंदा, बोतल पिआंदा, जो किते लोड़ पैंदी मैनू उधार सौदा भी दे दिंदा, उधार दे के फिर पैसे भी नहीं पुछदा सी। तो बस वो गल्लां करदा रहा। मैं कितना चिर तुहाडी यारी रही? कहंदा 12 साल। मैं क्या 12 साल रही तुहाडी यारी, तो कादियानी ने तबलीग कदों शुरू की तुहानू? कहंदा पुत्तर साडी यारी तो 1 महीने बाद कादियानी ने मैनू तबलीग शुरू करती। मैं क्या मतलब 12 साल तबलीग करदा रहा तुहानू? मैं क्या 12 साल उस शख्स ने तुहानू डंग मारिया और 12 साल के बाद डंग असर कर गया, ठीक है। तो मैं क्या तुहानू कादियानी बनाने च कामयाब हो गया। मैं क्या तुसीं मुसलमान सी ना, तुहाडा पुत्तर इमाम मस्जिद है? कहंदे हाँ जी। तो मैं क्या कभी सच्ची दसिया जे तुसीं कादियानी नूं इस्लाम की दावत दी जे? कहंदा नहीं पुत्तर। तो मैं क्या दावत असीं देनी कि उन्होंने देनी? इस्लाम की दावत असीं देनी कि कादियानियां देनी? असीं देनी। तो मैं फिर बाबा जी नूं समझाया, मैं क्या कादियानी की यारी जो असीं भी किसी मुसलमान नाल यारी लांदे सी ना, तो साडे ज़हन च सिर्फ इक्को हुंदा सी कि यार किसी तरह इस बंदे नूं असीं कादियानी करना है। इसलिए असीं तुहानूं इस गल तो मना करने हैं कि कादियानियां नाल बाईकाट क्यों करो, क्योंकि तुहानूं पता कोई नहीं इन्हां दे धोखिआं दा। हमेशा ऑपरेशन उही डॉक्टर कोल तुसीं करवांदे हो जिहड़ा डॉक्टर स्पैशलिस्ट होवे। कभी नाड़ी कोल करवाया ऑपरेशन जाके? इसलिए तुहानूं कहने हैं कि तुसीं भी या तो स्पैशलिस्ट बन जाओ तो या फिर कादियानियां नाल बाईकाट मुस्तकिल कर दो। हाँ एक सूरत है, अगर कोई कादियानी आके कहे भी आ मैनू दीन के मामले में मेरे नाल गल कर, तो अपने उलमा कराम को लै आवो तो बड़े प्यार नाल उन्होंने दावत दो, समझाओ, क्योंकि इन्हां कादियानियों नूं अपने बारे च नहीं पता कि कादियानियत की, सिर्फ इन्ना पता कि असीं कादियानी हैं, असीं अहमदी हैं, तो मिर्जे नूं असीं मानने हैं। तुसीं तो जनाब नाल ही रहिंदे हो, अगर किसी नाल कादियानी नाल गुफ्तगू हुई तो मेरा पैगाम पहुँचाओगे कि चाचे भतीजे का MDA ने मुनाजरा करा दे? हकी गल है? अच्छा जी, एक हवाला तुहानूं सुनान लगा। यह किताब दा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पुत्र ने लिखी है। जरा कैमरा मैन जरा कैमरे में भी देख लेना, पिछा किधर कर लेना। यह मैं निशान लगाया है, ये मिर्जे का पुत्र लिखता है, यह इबारत लिखी है कि बस मिर्ज़ा खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अच्छा उम्रे तो कौन कौन गया? कभी कोई गया मक्का मदीना हो के आए हो? कोई बंदा गया मक्का मदीना? सुनिया नाम? अच्छा इतने एक पत्थर जिथे बड़ा रश रहिंदा है हर वक्त, वह नाम भला की है? हजरे। अच्छा सब तो पहले इन्हूं बोसा किन्ने दिता सी? क्यों जी? सब तो पहला बोसा जिस नूं किन्ने दिता सी? तुहानूं कोई नहीं पता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को बोसा दिता। अज जिन्हें लोग उमरा करन जाते हैं, हज करते हैं, कोशिश करते इस पत्थर को बोसा दईए, चुमीए, ठीक है। हुण यह मामला अल्लाह के नबी ने किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया, सारे सहाबा ने किया, ताबे ताबईन ने किया, बहुत सारे लोगों ने मामला किया। क्यों किया? क्योंकि शुरू किने किया? अल्लाह के नबी ने, तो असीं वो करने हैं बड़े शौक नाल। हुण यह सवाल मिर्जे नूं किया गया, यह देखो, यह मेरे को किताब है मर्जियां दी तज़किरा, ठीक है, इन्हां कोल भी पई हुंदी लाइब्रेरी। इसका सफ़ा नंबर है 29। यह लिखा है, तर्जमा लिखा है, एक शख्स ने मिर्जे के पाँव को चूमा। एक शख्स ने मिर्जे के पाँव को चूमा तो मिर्जे ने उनको पता की आख्या? उन्हें क्या? हजरे असवद है ही है। अगर बात नूं दूर लै जाइए, उत्थे लै जाइए
تو میرے نبی نے حجر اسود نو بوسا دیتا ہے. اس خبیث نو خیال نہیں آیا کہ یہ کہندا ہے حجر اسود میرے پاؤں نے. بہت سارے حوالے نے ایسے میں نشان لگائے ہوئے نے, مگر چونکہ میں کہا چلو نبی جو تو گل کرتے نا غلط نہیں کرتے, سچی کرتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ مرزے نے یہ گل آکھی اگر میری ایک بھی پیشگوئی جھوٹھی نکل آئے تو میں سب تو بڑا جھوٹا. ایویں ہی ہے. اچھا یہ کئی پیشگوئیاں جھوٹیاں ہوئی, ساری ہی ہوئی. ایک وڈی پیشگوئی میں دسدا, انہیں کیا سی ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں, تے مریا کتنے ہے تو پھر کہنا پے گا نا 2 لکڑیاں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے. میرے کو کوئی غلطی کوتاہی ہوئے میں معذرت چاہنا, چونکہ دل بڑا کر رہے تھے گلاں کرن نوں ہور بھی, مگر سفر میں ہلے کرنا ہے کشمیر دا. تو پھر تمہیں یاد کرا دا ایک دفعہ پھر کہ ضرور دعا کرنا اللہ پاک اتنے سانوں کامیابی عطا فرمائے. تسی یقین کرو میں جھوٹ نہیں بولیا, میں ہن بھی مرزا ڈگی چ بند کر کے لورو لے آیا جی. اے منڈے نوں پوچھو کتوں کڈ کے لے آیا کتاباں, ڈگی چ بند سن. رکھو جی. اچھا تہاڈے جو کوئی جنت دوزخ گیا اتنے بھلا ہے گئے اندر نا, اندر نہیں گئے. اچھا میں بڑی باری جنت گیا. اچھا نہیں ادھر جنت میں نہیں گیا, میں ادھر ہی جنت گیا. اچھا اس جنت جو سپ بھی نکلا ہے تمہیں پتا, پالا فن ایڈا کٹیا تیری خیر ہو گئی. تو جنت سپ کا کام ہے بھی, پھر اخبار بھی آ گیا کہ مرضی جنت سپ نکلا ہے. اتنے تھی اندر چلے جاؤ نا, تو اج بھی ہوں تو پتہ نہیں شاید انہوں نے کتبے سے مٹا دیتا ہوئے, مگر جیڑی مرزے کی دوسری بیوی سی نا نصرت جہاں بیگم عرف نچھو جنہوں کہتے ہیں, وہ دی قبر دے اتنے ہجے تسی جا کے دیکھ لو تو ام المومنین لکھیا ہوا جی. بدری صحابہ کنے سن 313. مرزائیہ نے کتاب چھاپی ہے جہد مرزا دے مریدہ دا نام ہے, وہ دے اتنے انہوں نے لکھیا ہے اصحاب احمد 313 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ساڈے نبی نے انہوں نے مقابلہ کیتا ہے. میں تمہیں حقیقت دسن لگا, سچی گل دساں, جدو میں پہلی دفعہ عمرہ کر کے آیا, ٹائم زیادہ ہو گیا نا, عمرہ کر کے آیا, میں اسلام آباد اتریا تو میں اپنی ماں کو فون کیا, میں کہ اماں جی میں عمرہ کر کے الحمدللہ پاکستانی سرزمین تے آ گیا. تو مینوں کہندے تیرا کہڑا عمرہ قبول ہونا ہے. میں کہا جی چلو یہ تو اللہ نو واقعی گل ٹھیک ہے, پتہ ہے کہ کہدا قبول ہونا ہے کہدا نہیں ہونا. مینوں کہندے پتر میں تا کہہ رہی ہوں تو مولویاں عمرہ کر کے تو مولویاں کا عمرہ قبول نہیں ہوتا. دیکھو مولویاں تو انہاں لوگوں کو کنی چیڑ ہے. بندہ پوچھے مولویاں تہاڈی بکری کھولی, تم چڑ کرتے ہو, تمہیں اسلام کی دعوت دے رہے نا. صرف وجہ کی جو تم چڑھتے ہو تو مولویاں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے کتنے ہاتھ لائیے تو کتنے کتنے پیڑاں نکل جانیاں نے. اس وجہ تو اے لوگ اپنے لوگوں کو اس چیز تو ڈراندے نے. اچھا میری والدہ نے مینوں کہا کہ تو تے ہن عمرہ کر کے آ, تیرا وڈا بھرا تے پچھلے سال عمرہ کر آیا. میں بڑا پریشان ہویا, میں کہا میرا وڈا بھرا تے پکا قادیانی کٹر قادیانی, وہ نام تو میرے ابے نے رکھا سی دوجے خلیفہ کے نام سے مرزا بشیر الدین محمود. تو میں کیا وہ کتوں عمرہ کر آیا, تو پھر مرزائی تو مکہ مدینہ جا نہیں سکتے. تو میں کہا اماں جی وہ کتوں عمرہ کر کے آیا, تو یقین کرو مینوں پتا انہیں کی جواب دیتا, کہتے پتر وہ پچھلے سال قادیان نہیں گیا. ایویں گل ہے نا جی. اچھا قادیان چلے جاؤ, ہوں اتنے وڑ جاؤ. تو انہوں نے اسی طرح جس طرح ساڈے مسجد نبوی جڑے عزل جنہ بنے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اتنے مستجاب الدعا کے نام تو انہیں ایریا بنایا ہے کہ اتنے چونکہ اصل عزل جنہ نہیں جاستے, ساڈا عزل جنہ ہے بنیا ہوا جی اندر. اس صحابہ صفا اتنے مقام بنیا جتنے صحابہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے سی. انہوں نے قادیان دے اندر بیٹھ کے صحابہ صفا کے نام تو ایک چبوترا بنا تا کہ اتنے مرزا کے جڑے صحابی سن
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਉਹ। ਅਸਲ ਵਿਚਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्लाह ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।